So hello everyone, welcome to ASNing Academy's YouTube channel. My name is Arjun Chabra. I'm a faculty of civil engineering at ASNing Academy. So today with us we are having Mayank Sharma. आज हमारे साथ मयंक शर्मा जी हैं. He is all India ranked 12 in Engineering Services Examination 2023 this year, and he was all India ranked 26, I guess. Yes, Mayank, Yes, sir. 26 Last year. Yes, last sir. year. Last year, all India ranked 26 in the Engineering Services 2022. Yes, Very sir. nice, superb. So welcome, Mayank. Thanks for Thank joining you, us. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. इस स्टेज पे आके कैसा लग रहा है when you have cracked this examination twice? सर लगता तो सर अच्छा ही है एग्जाम निकलने के बाद, हाँ, बट मोर इम्पोर्टेंट ये है कि जो जर्नी है वो थोड़ी सी अगर हम इंजॉय कर लें तो वो भी अच्छा पार्ट है सर। ज्यादा बेहतर है, राइट? हाँ। बैंक, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए ताकि बच्चों को पता चल सके कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से आपने पढ़ाई करी है एंड एवरीथिंग. जी सर। सर मैंने बीटेक एचजीएस आईटीएस इंदौर से किया था, हम्म. मध्य प्रदेश। हम्म. उसके बाद in 2017 I came to Delhi and I joined coaching and I got selected in ECIL Hyderabad. So I हम्म. joined ECIL Hyderabad in 2018 April. हम्म. Since then I am working in ECIL. Last year last year I got selected in EAC. I got already rank 26, so I left ECIL and joined DOT, Department of Telecommunication, this year हम्म. only. ओके. Then yes, sir. सो यू. Then in बोलिए mean बोलिए. in meanwhile, I have given many exams. I got हम्म. selected in DRDO as well. हम्म. हम्म. The last year I've given the written, and this year the interview and subsequent the result has come. And I have also given MPPSC DSP radio exam in which my interview is awaited. हम्म. So this is all about myself. Superb. You have an experience of, you know, last 4-5 years now, because since 2018 you have been in this competitive exam scenario, and Yes, you sir. have mastered it, I guess. आपने इसकी मास्टरी अलग से कर ली है 5 साल में कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकालने कैसे और रैंक कैसे लानी है. सुपर. चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ जाए हम दे देंगे, और हमारा जो एटीट्यूड है वो जबरदस्त आसमान में है. वेरी नाइस. तो जब आपने गेट एग्जामिनेशन दिया था आपकी रैंक कितनी आई थी 2018 में, जिससे Sir, सिलेक्शन हुआ? in 2018, I got sir 397. My gate rank was 397. अच्छा. उस समय मेरे ख्याल Yes, से यार ईसी में कंपटीशन भी अच्छा खासा था. जी सर, नाउ जी सर. इन ईसी द कंपटीशन इज लेस, कंपैरेटिवली वेरी लेस राइट नाउ. Yes, sir. राइट. ओके, वेरी नाइस. और वहां पे आपने भी 2 साल काम किया, फिर उसके बाद No, ऑन द साइड ऑफ योर. initial I worked around 5.5 years, sir. ओके. 5 years, 6 until months. last year you have been working there. Yes, sir. I resigned in October and I joined DOT in October, sir. Okay, very nice. और जॉब के साथ साथ you were preparing for engineering services examination. Yes, sir. Yes. In 2020 also, you took interview guidance Yes, sir. program with us. Yes, sir. This That was means my fourth interview. It was my fourth interview. I went. Means my first interview was in 2020, but I हाँ. could not be selected. In 21, I also went up to the interview. I could not get selected. In 22, I got 26 rank, and this year as well. अरे वाह यार. So that means you have So cleared mains examination 4 times, out of yes, which sir. 2 times you have secured a rank. Yes, sir. Very nice. Superb. Next level experience, or next level determination to study and to achieve something. Very nice. And tell us, why did you give examination this year also? Because you got a good rank last year. Why did you get ESE this year also? Sir, after getting result last year, I decided to start preparing for civil services by Hmm. taking electrical as an optional. Okay. Since already I have given a lot of time in the technical subjects, so my technical subjects are little better. So I decided to Hmm. go for the last hurdle, you can say, in competitive exam, that is civil services. Yeah. So
So I decided to start preparing for that. So in meanwhile, I have given this exam as well. So that I can be in touch with my all technical subjects, which will help me या in that preparation. या बट फिर भी जो तैयारी आपको सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से काफी डिफरेंट हो जाती है नॉन टेक सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, राइट? Yes, sir. तो Yes, हाउ sir. आर यू मैनेजिंग दोज नॉन टेक सब्जेक्ट्स जो आप अभी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? Sir, I have taken a coaching. Through that, I am preparing for those GS papers. हम्म Uh, but but uh, but but my optional is already like 70% is prepared. Only two हम्म three subjects are I need to prepare more because in electrical some two three subjects are हम्म different from electronic communications. या So that's why I just like made that like to give to continue with engineering services because it will the mains exam will be good in enough exposure to test your technical knowledge. यस That's why I have written this time as well. हम्म मतलब आपने अपने सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए यू हैव गिवन, Yes, सो विल यू बी यूजिंग दिस रैंक टू स्विच अ डिपार्टमेंट और नॉट? yes, sir. If I got a good department, I'll switch. I use this rank. Means I have opted certain departments so that I can be in Delhi in future so that I can prepare for civils because I need some guidance in Delhi for civil services exam. So I have ओके, I have certain preferences which will give me Delhi as a posting that will be better for me, sir. सुपर. व्हिच डिपार्टमेंट यू आर फोकसिंग ऑन राइट नाउ? Sir, there are certain departments like Central Power Engineering Services is there या in which we used to think like the posting will get in Delhi. हम्म There is also like a opportunity in ITS also in Indian Telecommunication Services. हम्म Uh, maybe, but I don't know about that. Maybe in हम्म that some different postings will be there. हम्म So these two are my like first and second preferences. हम्म लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस नाउ. सिलेबस जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का है, डिड यू कवर्ड योर 100% ऑफ योर सब्जेक्ट्स और यू लेफ्ट सम सब्जेक्ट्स? Sir, I did not cover 100%. या Only like I have read only 4 to 5 subjects like maths, aptitude, basic project management, quality control, हम्म and some material science because material science is in our course syllabus also. So I have read it. यस हम्म But the only thing is, like if I have seen the pattern in the paper one of the prelims, हम्म like each year that paper is also getting unpredictable. यस Uh, like हम्म like in my case also like the marks are like in each year I'm not able to sustain that same marks. Is there is a fluctuation also. यस. हाउ So मच यू so हैव I सीन? would. Sir, every year I've seen 5 to 10 marks fluctuation. Means the uncertainty of that paper is that much. Like in this year also, like if I talk about this year, 2023, हम्म this year I got the means in all 4 years of in where I got selected, I got the lowest marks of in this year only. ओके. हाउ I मच मार्क्स means यू गॉट इन नॉन टेक? I got only 60 marks in paper one prelims. Oh, so you In managed to cover all that up with your technical subjects. So the only the technical subject I means I have to cover it with my technical subject, especially in mains I could able to cover that means the marks. So अच्छा, I would मैं so तुमको that रोक के एक तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. जैसे जी हर सर एक बच्चे को पता है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मॉर्निंग और इवनिंग के सेशन में होता है. जी सर आपने पहले पेपर वन दिया, आपको उस समय पता चल गया था कि पेपर वन आपका खराब हुआ है? हाँ सर खराब हुआ है वो मुझे नहीं पता चला था बट मुझे पता चल गया था कि टफ बहुत था और मैंने क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए हैं सर मैंने कुछ 48 या 49 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए थे हम्म मतलब आउट एक ऑफ 100. इंडिकेशन हो गया था तुमको. तो मुझे समझ में आ गया था कि 49 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं तो ऑब्वियसली
हम 8-10 क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ गलत करके आ ही जाते हैं, कितना भी हम कोशिश करें एक्यूरेसी कर ले। एक्यूरेसी का। तो हम्म मुझे समझ में आ गया था कि पेपर 1 थोड़ा टफ है, तो बाकी हमको टेक्निकल में फिर कवर करना पड़ेगा। हम्म। तो उस बीच में 2 घंटे का गैप होता है, कैसा माइंडसेट था तब? तो माइंडसेट क्योंकि एक बार एग्जाम निकल गया था तो थोड़ा चिल रख रहा था खुद को कि हाँ, ठीक है, तुम्हारे पास पहले मेरा से कुछ खराब था। गया। हाँ। हाँ, मेरे पास। और फिर ये भी सोच रहा था कि मेरा खराब गया है तो काफी लोगों का भी गया होगा। यस। क्योंकि पेपर पेपर थोड़ा था अनसर्टेन, पेपर आ गया था क्योंकि मैथ्स एप्टीट्यूड भी बहुत ही अलग लेवल का उन्होंने पूछा इस बार कंपेयर टू ऑल यस। 3-4 years। कुछ हम्म क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के हाफ ऑफ पेज के क्वेश्चंस थे, मींस यू हैव टू राइट इट हाफ 6-7 लाइंस। जैसे कि हम हम्म। कैट के एग्जाम्स में देखते हैं, क्या? सम 6-7 लाइन 6-7 हम्म स्टेटमेंट्स आर देयर, देन दे आर आस्किंग समथिंग। हम्म तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, तो उसकी वजह से अटेम्प्ट्स भी कम हो गए पेपर 1 प्रीलिम्स में। हम्म हम्म। वो थोड़ा सा इस बार पेपर 1 प्रीलिम्स थोड़ा अनसर्टेन हो गया था। ओके। देन डिड यू फॉलो समथिंग डिफरेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, और आपने जो 3 साल का प्रिपरेशन था, एज एन आपका जो सक्सेस रहा है मेंस एग्जामिनेशन के साथ, बिकॉज यू हैव बीन इन इंटरव्यूज 4 टाइम्स, यस सर। आपका जो मेंस एग्जाम का एक्सपीरियंस रहा है, इट हैज बीन सब्सटैंशियली वेरी गुड। तो आपने हर साल कुछ ना कुछ रेक्टिफाई किया, लर्न करा कुछ मिस्टेक्स से अपने, तो वो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे कि क्या मिस्टेक्स हो रही थी आपसे और कैसे आपने उनको रेक्टिफाई किया इन 4 years? जी सर, मैं जी सर मैं यही बताना चाहूँगा कि मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा, जो मैं शायद फर्स्ट या मेरा सेकंड टाइम जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 2 बार इंटरव्यू में जाने के बाद, कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं कर पाया था हम्म। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओके। एक तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सारे सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश कोशिश करनी चाहिए सारे एस्पिरेंट्स को, क्योंकि हम कोशिश करें कि ज़्यादा क्वेश्चंस छोड़ के ना आए एग्ज़ाम में। हम्म। उससे यस, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है, अगर हमको कुछ भी नॉलेज होगा उसके बारे में, तो हमको उसमें से कम 2 या 3 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर हम हम्म पूरा छोड़ देंगे तो पूरा 10 मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हम्म मैंने मेरे थर्ड अटेम्प्ट में और फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने यही कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हों। मतलब मैंने जो सिलेबस था उसमें जो टॉपिक्स छूट गए थे मेरे फर्स्ट सेकंड टाइम्स, वो मैंने थोड़े और अच्छे से कवर करने की कोशिश की। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एडवांस कम्युनिकेशन था, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स था, हम्म और बेसिक इलेक्ट्रिकल थोड़ा था, जो उसको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ा। तो ये जो 3-4 सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि ये जैसे कि एडवांस कम्युनिकेशन, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स इटसेल्फ उनका जो सिलेबस तो डिफाइन है, लेकिन वो कहीं से भी क्वेश्चंस आ रहे थे रैंडमली। तो वो मैंने इस बार कोशिश की कि हम्म उनको थोड़ा और अच्छे से कवर किया जाए। सो ऑब्वियसली यू गेट एन एज आफ्टर कवरिंग द एंटायर सिलेबस। कंपटीशन को बीट करना ज्यादा आसान हो जाता है जब आपको ज्यादा चीजें आती होती है, ऑब्वियसली, जी because सर। rather than depending upon few subjects, you should be focusing on all the subjects and covering the entire syllabus. But फिर भी बहुत सारे बच्चे एक एज रख सकते हैं, एज इन obviously in conventional examination you don't need to cover the entire syllabus, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं आंसर्स में, ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। सो उसके रिगार्डिंग कोई आइडिया देना चाहोगे कि कौन सा सब्जेक्ट अगर छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स तो कौन सा छोड़ सकते हैं? सर, अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ, मेंस का पेपर 1 में हम्म अगर आपको सब्जेक्ट छोड़ना है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट 2 टाइम में वही छोड़ के गया था। हम्म फर्स्ट सेकंड टाइम में मैं वही छोड़ कर गया था। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल आप एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं उसके, हम्म क्योंकि उसके कंपल्सरी पार्ट में एक-एक क्वेश्चंस रहता है। बाकी फिर वो जो नॉन कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं, उनमें फिर आप अपना सिलेक्शन ऑफ चॉइस जो है वो अगर प्रॉपर्ली मैनेज कर लेंगे, तो वो मैनेज हो सकता है पेपर 1 में। हम्म बट पेपर 2 में 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एडवांस कम्युनिकेशन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप ये दोनों छोड़ के नहीं जा सकते। यस। इसमें से कोई एक एक छोड़ सकते हैं। तो अगर आपने प्रेफ़र किया कि मैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ देता हूँ, तो कोई इश्यू नहीं है। बट सर, इश्यू इन दोनों सब्जेक्ट्स का ऐसा है कि इसमें से हर साल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल या इरैटिक टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो मे बी किसी ने हम्म नहीं पढ़े होते।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी कोर्स मटेरियल फॉलो कर रहे हो तो एटलीस्ट जो क्लासरूम में अगर जो जितना पढ़ाया गया है एटलीस्ट आप दोनों सब्जेक्ट्स को उतना तो पढ़ के जाइए ही जाइए। हम्म। जिससे कि आप बाकी सारे जो एस्पिरेंट्स जो और भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनके साथ में ही खड़े रहेंगे। अगर आपको नहीं यस। आता होगा तो किसी को नहीं आता होगा उसमें। हम्म। हम्म। सर मैं यही बोलूँगा कि अ, छोड़ने का स्कोप कम है क्योंकि सर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर अगर आप देखें लास्ट 3, 4, 5 ईयर 3 जब से वो सिलेबस चेंज हुआ है हम्म। बहुत ही मतलब इरैटिक कुछ सब्जेक्ट जो हैं उनमें से बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन्स कभी भी आ जाते हैं, हम्म। तो उनको फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट यही है कि एटलीस्ट जो पढ़ाया गया है कोर्स वर्क में उतना कवर करके जाएँ, तो दैट हम्म। विल बी सफिशिएंट टू हैंडल द पेपर। यस। आपने अभी सब्जेक्ट्स की बात करी जब बच्चे कोचिंग ले रहे होते हैं मेंस के, जैसे आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया, और आपने हमारे साथ मेंस की लाइव क्लासेस ली है। सो हाउ जी सर। वर यू मैनेजिंग द लाइव क्लासेस? क्या आप उसके रिकॉर्डेड वर्जन्स पे फोकस करते थे या फिर लाइव क्लासेस अटेंड करते थे? एंड व्हाट वाज द मेन रीजन व्हाई यू टुक लाइव क्लासेस, एंड आल्सो हाउ इट हेल्प्ड यू मैनेज योर वर्क आल्सो? जो आप काम कर रहे थे उसके साथ साथ आपने तैयारी कैसे कंटिन्यू रखी? सर क्योंकि 9 टू 5:30 गवर्नमेंट जॉब था पीएसयू का, तो शाम का ही वक़्त मिल पाता था हाँ। प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं जनरली रिकॉर्डेड वीडियोज़ ही देख पाता था, लाइव वीडियोज़ नहीं देख पाया कभी। हम्म। अ लेकिन मैंने कोशिश की कि जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, जो हम्म। मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे, मैंने कोशिश की कि सिर्फ़ उन्हीं के रिकॉर्डेड वीडियोज़ मैंने ज़्यादा ज़्यादा बार देखे। जिससे कि उसमें अच्छा। मेरे जो कॉन्सेप्ट जो मेरे छूट रहे हैं या मैं जो हम्म। नहीं ढंग से अच्छे से एग्ज़ीक्यूट कर पा रहा हूँ, तो मैंने जो 3-4 सब्जेक्ट्स थे स्पेशली फर्स्ट पेपर में बेसिक इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, सेकंड हम्म। पेपर में एडवांस कम्युनिकेशन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये 4-5 सब्जेक्ट्स के ही रिकॉर्डेड वीडियोज़ मैंने प्रेफ़र किए। बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा। डाउट क्लियरेंस कैसे करते थे अगर कोई होती है तो? सर डाउट क्लियरेंस तो सर क्योंकि मैं वर्किंग में था तो थोड़ा मुश्किल हो पाता था क्लियर करना। तो हम्म। कोशिश करता था कि खुद से ही जो जितना भी मैं उसको रिफ़ाइन कर लूँ या खुद से ही जितना कोशिश करता था कि खुद से ही डाउट क्लियर कर लूँ। हम्म। बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो प्रिपेयर कर चुके थे, उनसे भी मैं बीच-बीच में हेल्प लेता था, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके थे। हम्म। तो उन्होंने भी उनसे भी मैं हेल्प लेता था क्योंकि आपको किसी न किसी से तो मतलब वो डिस्कशन नहीं करेंगे तो थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऑब्वियसली दैट सर्कल हेल्प्स, जो ग्रुप स्टडी वाला जो सर्कल होता है जी, वो सर। आपको हेल्प हमेशा करता ही जी, सर। है। एक लास्ट जी, सवाल पूछूंगा रिगार्डिंग द इंटरव्यूज। आपने अगेन, जी, सर। you have been in interviews 4 times and you succeeded 2 times out of those 4 times. पहली 2 बारी में आपने क्या सीखा जब इंटरव्यू नहीं निकला था? एज एन इंटरव्यू सर नहीं निकला फर्स्ट था, 2 एज एन टाइम्स लिस्ट में नाम नहीं आया था, रीजन क्या था? वॉज इट द मेंस एग्जामिनेशन, क्या वो इंटरव्यू था या क्या था? सर इन माय केस इट वाज़ मेंस एग्ज़ामिनेशन मतलब मेंस मोर। एग्ज़ाम में हाँ, मेंस एग्ज़ाम में जो जो नंबर्स आने चाहिए मोर देन इफ यू वांट टू गेट योर नेम इन द लिस्ट यू नीड टू स्कोर एट लीस्ट 300 मिनिमम 300 हम्म। अबव मार्क्स नहीं आएँगे तो मेंस मेंस में नाम आना थोड़ा मुश्किल है। तो यस। मेरे हमेशा लास्ट 2 टाइम्स 300 बिलो मार्क्स थे। Last हम्म। year my mains marks was 316 and this year my mains marks was 343. अच्छा। वेरी नाइस, गुड जम्प। So that was the difference, sir. Only हम्म। those mains marks was my difference. एक बार 4 सालों का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी बताइए। हाउ वाज इट डिफरेंट एंड हाउ वाज इट सिमिलर? Sir, interview every 4 times like हम हर चारों बार चेयरपर्सन डिफरेंट मुझे मिले। ऐसा नहीं रहा हम्म। कभी कि सेम चेयरपर्सन मिले। तो वो एक था कि हर बार चेयरपर्सन डिफरेंट थे तो जो इंटरव्यू का माहौल था चारों बार अलग मिला। हम्म। फर्स्ट टाइम जो था वो थोड़ा-सा मेरा क्योंकि मैं ज पास आउट हुए मुझे 1-2 साल ही हुए थे तो जनरली मेरा कॉलेज एजुकेशन पर ही या बेसिक सब्जेक्ट्स पर ही इंटरव्यू रहा। बट हम्म। जब मैं सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब इंटरव्यू दिया तो
मुझसे बेसिक सब्जेक्ट्स नहीं ज़्यादा पूछे गए। मेरा पूरा इंटरव्यू मेरे टेक्निकल वर्क प्रोफाइल पे चला, क्योंकि मैं ईसीएल में एन्क्रिप्शन सेक्शन में काम करता था। हम्म। तो मैं वीएचडीएल के प्लेटफ़ॉर्म पे हार्डवेयर कोडिंग करता था। तो मेरा हम्म। मैक्सिमम जो इंटरव्यूज़ रहता था वो एन्क्रिप्शन से रिलेटेड क्या-क्या कर सकते हैं। जैसे इस बार का था कि मुझसे पूछा गया था कि व्हाट्सएप में वो जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन करते हैं, हम्म। उसमें क्या हम्म। एल्गोरिथम यूज़ किया है। वाह। हम्म। तो गुड। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट होगा, और अगर आप वर्किंग हैं तो हम्म। आपके जो प्रोफाइल है उसके ऊपर ज़्यादा वो एम्फसाइज़ करते हैं। तो हम्म। और तो वो आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना होगा। अगर आप वर्किंग हम्म। हैं तो आप कोशिश करिए कि आपकी जो वर्किंग प्रोफाइल है उस पर थोड़ा-सा ज़्यादा आप प्रिपेयर होके जाइए, कि वो क्वेश्चंस वो उन्हीं पर करेंगे। और अगर आप हम्म। फ्रेशर हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपने जो स्ट्रॉन्ग 4-5 सब्जेक्ट्स हैं उसको प्रिपेयर करके जाइए। वो कभी-कभी आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लेते हैं अगर उनको पूछ लेते हैं। लगता है। जी सर। यस। यस। सुपर्ब। सुपर्ब। आपने काफी सारे इंसाइट्स हमको दिए हैं और स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प होगी इसमें से। एनी एनी लास्ट वर्ड्स जो आप स्टूडेंट्स को एंड में बताना चाहते हैं कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग व्हाट शुड बी योर माइंडसेट, एंड अगर आपको सस्टेन करना है अपने आप को फॉर अ लॉन्गर रन, आप अपने आप को किस माइंडसेट के जरिए इतने लंबे समय तक सस्टेन कर पाए, एंड व्हाट इज द रीजन यू आर स्टिल गोइंग ऑन? सर रीज़न, एक तो मैं इस लंबी जर्नी का जो एक टेक अवे जो है, अदर देन द रिज़ल्ट, के मैं लिखना सीख गया। हम्म। मैं अब लिखता हूँ सर, काफ़ी लिखता हूँ, मतलब शायरी लिखता हूँ। तो सुपर्ब। इस लंबी जर्नी का टेक अवे एक तो वो है, तो मैं एक शायरी सुनाता हूँ सभी को। मेबी जब मैं भी डीमोटिवेटेड होता हूँ तो जनरली उसी को पढ़ता हूँ। हम्म। तो सर वो कुछ इस ऐसा है कि पूरे ज़माने ने ये साजिश की है कि मैं हार जाऊँ। पूरे ज़माने ने ये साजिश की है कि मैं हार जाऊँ, पर ऊपर वाले ने ये ख्वाहिश की है कि मैं जीत जाऊँ। पर ऊपर वाले ने ये ख्वाहिश की है कि मैं जीत जाऊँ। पर ज़माना फिर भी नहीं माना। पर ज़माना फिर भी नहीं माना क्योंकि उसे था मुझे आज़माना। पर ज़माना फिर भी नहीं माना क्योंकि उसे था मुझे आज़माना। तो मैंने भी ठाना। तो मैंने भी ठाना और कहा ज़माने से कि ज़माना तू चाहे मुझे कितना भी आज़माना, ना मैं रुका हूँ और ना ही रुकूँगा। ना मैं रुका हूँ और ना ही रुकूँगा, क्योंकि सफलता का पैमाना तूने कहाँ है जाना। वाह। गजब। आई गॉट गूज बम्प्स। वेरी नाइस। तो सर इट मतलब एक्सप्लेन्स अ यही है लॉट। कि आप 2 चीज़, मतलब मेरा जो टेक अवे है, 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक कंटिन्यूटी और दूसरा पेशेंस। तो सर वही है कि इफ थिंग्स आर फॉर, मतलब अगर वो चीज़ आपके लिए बनी होगी तो डेफिनिटली इट विल टेक टाइम, लेकिन आपको ज़रूर मिलेगी। तो बस कंटिन्यूटी और पेशेंस इज़ द की। हम्म। आई कुड फील दैट और एनर्जी ऑफ कामनेस ऑन इन योर फेस, एंड अक्सर वो कामनेस के जरिए ही आप इतनी सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और वो अंदर से शायरी इंसान की तभी निकलती है जब बंदा इतना ज्यादा काम हो जाता है और उसने काफी चीजें एक्सपीरियंस कर ली होती है। वेरी नाइस टू टॉक टू यू। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड यू आर रिफ्लेक्टिंग अ लॉट ऑफ गुड एनर्जी आउट देयर। और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए आप। और अगर कोई आपको रास्ते में मिलता है, आपके आपसे कोई गाइडेंस सीख करता है, फ्रेंड्स, रिगार्डिंग प्रिपरेशन, प्लीज बी ओपन फॉर फर्दर चैट्स एज वेल। राइट। थैंक यू वेरी मच थैंक यू। मयंक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर सीएससी एज वेल। राइट। थैंक यू सर। भगवान से ये दुआ रहेगी कि आप जरूर सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन निकालें और टॉप रैंक लेके आए। राइट। और थैंक यू अपना। सर। बाकी सर मैं 4 यस। लाइनें और भी सुनाना चाहूँगा। जरूर। अ ये फाइनल 4 लाइनें होंगी। मैंने वक़्त के ऊपर कुछ लिखा था कि अ, वक़्त की क्या बात है, वक़्त की क्या बात है, रहता सबके साथ है। वक़्त की क्या बात है, रहता सबके साथ है, हम्म। पर किसी के खिलाफ तो किसी के साथ है। पर किसी के खिलाफ तो किसी के साथ है, पर यही तो मज़े की बात है। दिस तो इज द सर ब्यूटी। या। दिस इज़ द ब्यूटी। आप अपने वक़्त
वक्त सभी का बदलता है, तो जस्ट वेट फॉर योर टाइम, थिंग्स विल फॉल फॉर यू। सुपर्ब, वेरी नाइस। अभी आपने जो लास्ट लाइन बोली है वो मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं उसको फील कर रहा था लिटरली। वेरी नाइस मयंक। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड वेरी नाइस नोट एट विच वी आर एंडिंग दिस इंटरव्यू। और काफी बच्चे अगर ये इसको सुनेंगे दे विल रियलाइज कि हाउ मच टाइम इट मे टेक और आपको माइंडसेट कैसे रखने की जरूरत है। एंड जो शांति तुम्हें अंदर चाहिए, नहीं, जो शांति तुमको बाहर चाहिए पहले वो शांति तुमको अंदर लानी पड़ेगी बिल्कुल ऑब्वियसली। सर, बिल्कुल। तभी आप वो चीजें अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। राइट, इट मे टेक टाइम बट इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। और जिस तरीके से आप अपना खुद चेंज अपने आप को करने की कोशिश करते हैं, वेरी नाइस। सो थैंक्स लॉट मयंक। आई होप टू सी यू थैंक यू इन सर, थैंक फ्यूचर यू एज सर, वेल एंड ऑल द थैंक यू बेस्ट सर, फॉर योर फ्यूचर। भगवान से ये दुआ रहेगी कि आपका फ्यूचर काफी ब्राइट रहे एंड यू इंस्पायर अलॉट। राइट, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।